Okay, students, today's topic, it was the same as it was the same as yesterday. The topic was beer. Am I audible to you people, students? Everybody can listen me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just give me a moment. Okay, so today's topic was beer. Yesterday also we people have discussed about the beer introduction, and as well we have talked about the history of the beer. Today we will start understanding the different types of ingredients which we just hold on a minute. Sir, your mic is mute, sir. Unmute it, sir. Guys, just wait for 2 minutes. Huh? I'm in a call. Just a minute. Guys, just give me 2 minutes. I'm in a call. Extremely sorry, student. There is some call came. That's why didn't able to entertain. Okay. Okay, students. The topic which we will be teaching you today, that's beer. Let me show you the screen and make you understand the different things of beer. Is my screen is visible to you people, student? Yes, sir. Very good. Okay. Now let's come with this. Come one by one. No, not from here. Let's start it from here. That note I will be sharing with you. That's a beer's whole thing we people are reading. This is a history we people have talked about. Now we will talk about the beer making ingredients. Now let's see, I will show you the pictures of the beer making ingredients as well. And that will clarify the whole thing. Let me show you the next slide. Yeah. The major beer making ingredients are these three. What are those? First one is barley. Next one is what? Hop. And next one is yeast.
These three types of, and along with that we have sugar, water, and all those things. These three things are the major ingredients of producing beer. आपको अगर बियर बनाना होगा, आपको अगर बियर बनाना होगा तो ये तीनों इंग्रेडिएंट आपको चाहिए ही होगा. ये तीनों इंग्रेडिएंट नहीं रहेगा तो आप बियर नहीं बना सकते. ठीक है, क्या क्या चीज? एक हुआ बार्ली, एक हुआ हॉप, और एक हुआ आपके ईस्ट. ये तीनों चीज से आपके बियर बनते हैं. उसके साथ में आपको देना पड़ेगा थोड़ा सा शुगर और वाटर. वाटर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. देयर इज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इनसाइड द बियर. Now let's start understanding this whole thing one by one. First, let's start about barley. Now, question, when we are talking about this barley, now question arises, why we are using barley? Why we are using barley? Why not any other grains? Did you understand this thing? What the question which I'm asking you? Kavita, understood? Yes, sir. Rahul, Shibam, understood Yes, why sir. I'm asking this? As like basically in the time of beer definition, we have read that it is not important that we need to use barley. We can make beer from any of the ingredients. हम beer किसी भी grain से बना सकते हैं जिसमें starch है. देखिए, जो पिछले वाला जो हम लोग definitions पढ़े थे इसमें ही, पिछले वाला जो definition हम लोग पढ़े थे इसमें ही, देख लीजिए. देखो, beer is the it is produced by fermentation of sugar derived from the starch based on material. Most common brings malted barley. हुआ, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या? बार्ली व्हीट से भी बन सकता है, राइस से भी बन सकता है, बहुत चीज से आपका बियर बन सकते हैं. अगर ऐसा है तो हम लोग इस बार्ली के ऊपर इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं? वाई बार्ली? क्वेश्चन इज वाई आई विल ऑलवेज टेक बार्ली टू प्रिपेयर बियर. मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि बार्ली को हम लोग क्यों ले. देखो बेटा, बार्ली का कुछ क्या बोलते हैं यूएसपी है. यूएसपी क्या है? बार्ली में पहली बात, बार्ली में सबसे ज्यादा शुगर कंटेंट है. कल भी हम बोल रहे थे आपको यही चीज कि whenever a kid is taking birth, remember, whosoever it is a kid of human being, it could be a kid of an animal, it could be a kid of a tree, of a bird or anything, whosoever, a kid only can digest carbohydrate. किडरा, बच्चा, जो भी बच्चा होते हैं, जो भी शिशु होते हैं, वो सभी, और इन्फेंट्स जो होते हैं वो सभी लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं डाइजेस्ट कर सकते. इसलिए ही हम लोग बार्ली को उन लोगों को खिलाते हैं. और बार्ली में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है. बाकी जितना भी ग्रेन है आपके, राइस हुआ, कॉर्न हुआ, व्हीट हुआ, ज्वार हुआ, बजरा हुआ, राई हुआ, जो भी है, जितना भी ग्रेन्स आपको अगल बगल में मिलते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द oil grains, I am talking about those staple kind of grains which you generally consume every day. उन लोगों में से बार्ली में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है. और मुझे बेसिकली करना क्या है? आप बोलोगे सर आप इतना बार्ली बोल रहे हो, तो बार्ली में करना क्या होते हैं? इसके पहले मुझे एक चीज जानना, आप लोगों को भी एक चीज जानना पड़ेगा. वो क्या है कि बियर इसमें होते क्या है? क्यों हम इस बार्ली के पीछे इतना दौड़ रहे हैं? क्यों? क्या जरूरत है? शुगर के पीछे हम लोग क्यों दौड़ रहे हैं इतना? बेसिकली बियर बनते हैं एक चीज से जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन. बियर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन थिंग दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. जस्ट अ मिनट गाइस. हेलो, ঠিকই, ওটা রং নয়, ঠিকই আছে. আচ্ছা শোনো, এক মিনিট, আমি তোমাকে আরেকটা নাম্বার পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি ওই নাম্বারে ফোন করে বলো ব্যাপারটা, ঠিক আছে? না, এলাহাবাদ ব্যাংকে পেমেন্ট করলে হবে না. এলাহাবাদ ব্যাংকে পেমেন্ট করলে হবে না. তোমাকে একটুখানি হোল্ড করো, আমি তোমাকে একজনের নাম্বার দিচ্ছি, সৌমেন স্যার অ্যাকাউন্টসের, ঠিক আছে? তুমি ওনাকে ফোন করো ইমিডিয়েটলি, উনি তোমাকে বলে দেবেন কি করতে হবে. দাঁড়াও, একটুখানি হোল্ড করো, 1 মিনিট হোল্ড করো, আমি তোমাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি.
তুমি কোথা থেকে পেমেন্ট করছো, কোন জায়গা থেকে পেমেন্ট করছো এখন? গুগল পে থেকে করছো? তোমার কাছাকাছি কোনো ব্যাংক আছে? ব্যাংকে যাও, ব্যাংকে গিয়ে পেমেন্ট করো। যদি না হয়, আর এই ভদ্রলোকের নাম্বার তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, সৌমেন স্যারের নাম্বার পাঠিয়ে দিয়েছি, ওনাকে ইমিডিয়েটলি ফোন করো, ওটা জিজ্ঞেস করো কি করতে হবে, ঠিক আছে? উনি বলে দেবেন তোমাকে সব। আমি পরে ফোন করছি তোমাকে। ওকে, সরি স্টুডেন্ট, sorry guys, what to do, we have to go for the college walks as well. So as I was talking with you, so basically what happens in the beer, what we are so much, what we are so much crazy about the grains at which we need carbohydrate. Let's see, I'm showing you something. Please see what basically happens in the beer. What basically happens in the beer? Just a minute, give me a moment. Is whiteboard is clear to you? Yes, sir. Okay. Now let's talk about one thing. That is, what happens in the beer? Why we need this? This is for, if we know this thing, then the whole thing will be clear for us why we people are doing fermentation. Now what is this fermentation? फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, किसी को पता है? कोई मुझे बोलेगा व्हाट इज फर्मेंटेशन मीन्स? आप लोग तो पहले भी पढ़े होंगे ये चीज को, isn't it? Anybody from science background here? Anybody from science background? Students, आप में से कोई साइंस बैकग्राउंड के हैं? हेलो, कैन यू लिसन मी स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Okay, who is science background? Who is from science background? Anybody from science Sir background? Rahul and Shivam, I Shibam? think. Shibam, are you from science background? No, sir, commerce. Commerce. Oh, sorry, Rahul? sorry. Okay, Rahul? Commerce, sir. Commerce. Oh, sorry, Audit? sir. He's from Okay, no problem. Audit? Audit? Sir, it is a Yes. sir, it is a process. It is a process to broke the glucose Yeah, exactly. by the chemical compound, sir, with the help of Chemical compound. Okay, very good. Let me tell you. Now, fermentation is a procedure through which we convert sugar. Convert. It's basically a decomposing procedure. We convert sugar into into water, carbon dioxide, and one more thing that's called alcohol. Basically, this fermentation means fermentation equal to what? Let me find out. This is, first one is fermentation. It's a bioorganic procedure through which the yeast gets I'm sorry, bioorganic procedure through which the carbohydrate of the grain get decomposed in alcohol, water, and carbon dioxide. That is called fermentation. Basically, why we people are going for doing fermentation? Because in the beer we need alcohol. हम लोग को बियर में अल्कोहल चाहिए। तो अल्कोहल कैसे मिलेगा हम लोगों को? हम लोग अगर ग्रेन को, जो भी ग्रेन है उसमें जो अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट को अगर हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, कैसे डिकम्पोज करेंगे? वी कैन ओनली डिकम्पोज द कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द हेल्प ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स कॉल्ड ईस्ट। YEAST, ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट इज ए बायो ऑर्गेनिक मटेरियल। ये एक लिविंग मटेरियल है। जो लिविंग मटेरियल क्या करते हैं? लिविंग मटेरियल, what this living material does? This living material basically decomposes the carbohydrate inside any grain. ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद क्या क्या चीज बनते हैं? थोड़ा सा पानी, वेरी लिटिल अमाउंट, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। इसलिए आप देखिएगा
कि राइस को भी आप चार, आई मीन बॉयल किया हुआ राइस को अगर आप लोग 2-3 दिन रख दोगे तो उसके ऊपर पूरा पूरा क्या बोलते उसको उसको उसके ऊपर थोड़ा सा स्कम जैसा भर जाएगा। स्कम मतलब क्या बोलते हैं, फ्रॉक जैसा ऊपर में आ जाएगा, फेना जिसको बोलते हैं हम लोग, फेना जैसा ऊपर में आ जाएगा। एंड उसको आप पीने से क्या होगा, आपको नींद आएगा। क्यों? बिकॉज उसमें अल्कोहल बन रहा है। दिस इज द प्रोसीड्यूर। और बियर में भी हम लोग को यही चीज चाहिए। बियर में भी हम लोगों को यही चीज चाहिए। फर्मेंटेशन में क्या होते हैं बेसिकली, आफ्टर फर्मेंटेशन वी गेट H2O, then plus CO2 plus H5 C2 H5 sorry H5. Get this. Can anybody tell me what is this? This is water. This is H2O, water. CO2, carbon dioxide, and C2H5OH. What is this C2H5OH? This is alcohol. This is what? This is alcohol. This is alcohol. समझ में आया? तो ये जो प्रोसीजर, अब ये हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है, किससे कैसे हो रहा है, ये देख लीजिए कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है एक चीज जिसका नाम है ईस्ट। देख लीजिए ईस्ट। ये ईस्ट क्या कर रहा है, इस चीज को कर रहा है। इस पूरा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये पूरा प्रोसेस है, दिस होल प्रोसीड्यूर विच वी हैव टॉक्ड अबाउट, दिस होल प्रोसीड्यूर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, समझ में आया बेटा? व्हाट इज फर्मेंटेशन, समझ में आया? Guys, did you able to understand what is fermentation? Yes, sir. Yes. Now, as because we need to go for fermentation, as we need to go for fermentation, as we need to go for fermentation. Just repeat. As we people are going for fermentation and we need lots of alcohol, so what we need? We need alcohol more. We need alcohol more. I mean, we are doing fermentation to get more alcohol, to get more alcohol. To get more alcohol. Okay. Now let's come in this. Now barley एक ऐसा ग्रेन है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, इसलिए हम लोग बार्ली को इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी और किसी चीज को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमको चाहिए क्या, एक ऐसा ग्रेन जिसमें होगा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि जितना ज्यादा इसमें से हम लोग क्या सीखे कि जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा, बेसिकली यहाँ पे और एक चीज हम लोग आपको दिए नहीं जो देना चाहिए था, सॉरी, बस ये और एक चीज हम आपको नहीं दिए थे, इसको यहाँ पे बिठाओ। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने बनाया है इसमें हम लोग एक चीज को तो ऐड ही नहीं किए, वो है कार्बोहाइड्रेट, वो है C6 C6। ये सब देखे हैं आप लोग कभी? Yes, sir. वेरी गुड। ये क्या है, ये C6H12O6, कोई बोलेगा ये क्या है? C6H12O6 क्या है ये, कौन बोलेगा मुझे? C6H12O6 क्या है, कौन बोलेगा? अरे यार, this one is the carbohydrates, this one is the carbohydrates. This is carbohydrate, this thing is the carbohydrate.
दिस थिंग इज द कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आया? ओह सॉरी, दिस थिंग इज द कार्बोहाइड्रेट, दिस वन इज द अल्कोहल। ये कैसे हो रहा है? ये इसके वजह से हो रहा है। और ये पूरा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे चीज को, इस पूरे जो चीज हो रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। गाइस कैन यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में तो आ रहा है ये चीज, है ना बेटा? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दिस होल थिंग इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन के लिए हम लोगों को चाहिए शुगर, क्योंकि ये चीज, ये पर्टिकुलर चीज जितना बढ़ेगा, ये पर्टिकुलर चीज जितना बढ़ेगा उतना ही ये चीज बढ़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। मतलब ये चीज कार्बोहाइड्रेट जो है ये जितना इंक्रीज करेगा उतना ही आपका अल्कोहल भी इंक्रीज करेगा, है ना? जितना कार्बोहाइड्रेट जितना ज्यादा होगा अल्कोहल भी उतना ज्यादा होगा। और हम लोग बियर में इतना कोशिश किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि बियर में अल्कोहल का मात्रा बढ़े, अल्कोहल का परिमाण बढ़े। तो स्वाभाविक हम लोग को वैसा ग्रेन लेना पड़ेगा जिसमें शुगर का कंटेंट ज्यादा है। शुगर का कंटेंट ज्यादा होगा तो उसमें अल्कोहल भी ज्यादा बनेगा, सिंपल फैक्ट। सो दिस इज द एंड देखिए फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ यूजिंग बार्ली, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। सो दिस इज बार्ली। बार्ली द मेन थिंग, यहाँ पे भी सेम थिंग, यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है बार्ली। देखो द मेनली द बार्ली botanical name Hordeum vulgara. No need of remembering this thing, just read once, as if you can remember is good, if you cannot don't worry. Is used but can be produced from wheat, rice. देख लीजिए, what is that telling? Barley is generally used, but you can use wheat, rice, combination of grains. You can use to prepare beer. आप बियर बनाने के लिए आप व्हीट भी यूज कर सकते हो, राइस भी यूज कर सकते हो, बाकी बहुत सारे ग्रेन्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम लोग बार्ली को ज्यादा करके एम्फसाइज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बार्ली में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? और जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा, उतना ज्यादा अल्कोहल बनेगा, ठीक है? चलो, German beers are made from 100% barley and production process governed by the law. These all things are simple things. Okay, why barley? Now see, they have couple of reasons. Cheapest available, not used as staple diet. बार्ली को हम लोग रोज खाने के सामान में इस्तेमाल नहीं करते। आप घर में बार्ली खाते हो रोज? कौन खाता है? कोई खाता है रोज बार्ली? कौन खाता है? रीमा मंडल, रीमा मंडल, रीमा मंडल, आर यू देयर? सुनाई पड़ रहा है? कविता सुनाई पड़ रहा है बेटा? Yes, sir. कविता तुम घर में रोज बार्ली खाते हो? कविता, क्या आप घर में रोज बार्ली खाते हैं चावल की sir. जगह? आप घर में क्या खाते हो, चावल या बार्ली या तो रोटी? Sir, चावल। चावल, बार्ली नहीं ना खाते आप? सर, बढ़िया, नहीं सर। वही बोल रहे हैं। हर्ष ओझा घर में क्या खाते हो, बार्ली? Sir, brown rice, sir. ब्राउन राइस, ओके। Yes, sir. सुष्मिता बाला घर में क्या खाते हो? सर, राइस, रोटी, राइस रोटी। बार्ली नहीं खाते ना, तो बार्ली आपके नहीं सर, स्टेपल बार्ली फूड में नहीं चोखा। आते। एग्जैक्टली, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि बार्ली इज द चीपेस्ट अवेलेबल प्रोडक्ट, और जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टेपल फूड के हिसाब से इस्तेमाल नहीं करते। मतलब रोज के खाने वाले जो सामान है हम लोग का, ग्रेन्स है, उसमें बार्ली नहीं आते, इसलिए हम लोग बार्ली को बियर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, लो इन प्रोटीन कंटेंट एंड एक्सेस माइट कॉज फ्लॉस क्लाउडीनेस। मतलब क्या होते हैं, बाकी जो ग्रेन्स है, बाकी जो भी ग्रेन्स है, एक ग्रेन्स में क्या क्या चीज होते हैं हम लोग को देखना है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये चीज हम लोग को समझ में आया? बहुत अच्छा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे जे एक न्यू पेज ओपन करते हैं
अच्छा, इसको वाइप ही कर देते हैं हम लोग। ये वाला समझ में आया? तो आपको कार्बोहाइड्रेट वाला समझ में आया? तो पूरा फर्मेंटेशन समझ में आया? तो आया तो मैं क्लियर कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग एक ग्रेन को पकड़ेंगे, सोचो कि ये एक बार्ली है, ये एक ग्रेन है। अगर ये ग्रेन होता है तो इस ग्रेन के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज होते हैं आपको पता शायद नहीं है, हम लोग पता करते हैं। चलिए, बेसिकली इस ग्रेन में बहुत सारे चीज होते हैं। क्या क्या देख लेते हैं हम लोग इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। बेसिकली हम लोग अगर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को। बेसिकली फर्स्ट ये एक हुआ, ये एक हुआ, ये एक हुआ और ये एक हुआ। ये अगर एक ग्रेन है तो कि ये बार्ली है, तो ये क्या होता है इसके अंदर? फर्स्ट वन इज प्रोटीन। आप लोग को जानना बहुत जरूरी होता है कि एक ग्रेन के अंदर होते क्या क्या है। प्रोटीन, प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, और क्या होते हैं? मिनरल। और क्या होते हैं? नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट। और क्या होते हैं? कोई बोलेगा और क्या होते हैं? और कुछ होते हैं ग्रेन में? और कुछ होते हैं ग्रेन में? और कुछ होते हैं क्या ग्रेन में? फाइबर सर, फाइबर। फाइबर। ओके, एक मिनट, एक मिनट। कौन सा दिख संभाले? एक तरफ से यहाँ पे एसएमएस आ रहा है, वो भी देखना है। कौन सा तरफ जाए? क्लास, क्लास ओपन कराऊं? ये कराऊं? कहाँ से कराऊं? चलो, ओके। वन मोर की, फाइबर। Very good. So this all are the four things, basically in the grain. याद रखिए बार्ली में क्या होते हैं? बार्ली में बाकी ग्रेनों में जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, ये सभी में प्रोटीन का परिमाण, प्रोटीन का परिमाण बहुत ज्यादा रहते हैं। प्रोटीन, सभी ग्रेन में प्रोटीन रहते हैं, मिनरल रहते हैं, फाइबर रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। लेकिन बार्ली, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बार्ली, देन याद रखो कि बार्ली में प्रोटीन का परिमाण बहुत ज्यादा कम रहते हैं और इसमें क्या होते हैं? सॉरी, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के परिमाण ज्यादा रहते हैं। इसलिए हम लोग बार्ली को इस्तेमाल करते हैं। बार्ली में प्रोटीन कम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, बाकी सब ठीक है, लेकिन प्रोटीन के परिमाण यहाँ पे बहुत कम। प्रोटीन जितना ज्यादा होगा आपके बियर उतना क्लाउडी बनते जाएगा। बियर में प्रोटीन जितना ज्यादा होगा, ग्रेन में प्रोटीन जितना होगा, बियर क्लाउडी होगा। देखिएगा आप लोग जब जब घर में चिकन स्टू बनाते हो तो वो थोड़ा क्लाउडी टाइप का होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए। ठीक है, चल नेक्स्ट। इट हैज प्रोटेक्टिव सेट व्हिच प्रोटेक्ट्स ग्रेन फ्रॉम द कंटामिनेशन। देख लीजिए, बार्ली का एक तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये होता है बार्ली। देख लीजिए, इसके ऊपर से एक प्रोटेक्टिव कवर है जो बार्ली को बहुत जल्दी कंटामिनेशन होने से रोकते हैं। मतलब जैसे चावल अब अगर आप 10 आई मीन आप देखोगे गांव में अगर आप जाओगे, चावल को हम लोग रख देते हैं, वो हो सकता है 2 महीना, 10 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल तक चावल रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि चावल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहते हैं। आप लोग देखा धान जो बोलते हैं हम लोग, धान के ऊपर क्या होता है? धान को आप 1 साल, 2 साल, 3 साल तक रख दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि चावल के ऊपर एक मोटा सा कोटिंग रहता है जो अंदर का चावल को वो कंटामिनेशन से डिवाइस करके रखते हैं। बार्ली में भी ऐसा होते हैं, क्योंकि बार्ली को आप बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, बार्ली के अंदर 2 एंजाइम होते हैं। क्या क्या? वन इज सिस्टेज, ओके, एंड
gas stage. See, if you can remember, not. So this all are the barleys. Now next we will talk about hop. So barley is clear, guys. Did you able to understand the whole thing about barley and why we are using barley? Yes, sir. Anybody have any query regarding this? Anybody have any query regarding this? Do anybody have any query regarding this? Because we are going for the next slide. Because we are going for the next slide. Do anybody have any query? Shangita, Kavita, Harsh, No, sir. Shushmita, Rima, Shiba. For the guys, sorry, the call came in. Okay. Now let's start with another more thing, which is called hop. Let's see some pictures of the hop. That is hop. It is not hope, it is hop. Now what is hop? Hop is, let's find out hop. Let's find out this hop. Now what is a hop? And why we use this hop is a very important part. Let's search this in the internet and let's see how does the hops looks like. Though the pictures are already given, but then also we can check in the internet and find out what the hops are. आप लोगों ने कभी हॉप देखा? Guys, did anybody have seen hop? No, sir. Nobody have seen hop? This thing is used as a flavoring agent in the beer. Beer में जो आपको वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, बीटर टाइप का एक एरोमा नहीं मिला आप जब बियर पीते हो? जो भी है यहाँ पे, जो भी आज तक बियर पिया है, वो लोग देखोगे कि बियर में बहुत एक गंदा वाला फ्लेवर आते हैं. गंदा वाला मतलब उसको गंदा नहीं बोलना चाहिए, ये एक हॉपी फ्लेवर आते हैं, थोड़ा मल्ट का हॉप का फ्लेवर आते हैं. ये इस चीज से आते हैं. ये चीज सबसे ज्यादा बनते हैं कहां पे बोलो तो? ये सही चीज सबसे ज्यादा बनते हैं नॉर्दर्न जर्मनी में. जर्मन एक कंट्री होते हैं, तो नॉर्दर्न जर्मनी में सबसे ज्यादा हॉप बनते हैं. नॉर्दर्न जर्मनी में सबसे ज्यादा हॉप बनते हैं. ये ऐसा वाला पेड़ होते हैं हॉप का, देख लीजिए. और सबसे बेहतर चीज है ये हॉप का. तुम बोलोगे सर बियर में फ्लेवरिंग करना ही है हमें, तो फ्लेवरिंग करके इंडिया में कम पड़ गया कि हमको जर्मन जाना पड़ेगा बियर का फ्लेवरिंग करने के लिए? बात तो सही है. Well, it's like that in India we have less of the aromatic herbs, that we will go in Germany to find out aromatic herbs to give aromas in the beer. क्यों हम इस हॉप को इस्तेमाल करते हैं? ये एक फूल है, पेड़ का फूल. ये फूल में एक अनकैनी एरोमा होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं. एक चीज हम आपको समझाते हैं शायद, सुन लीजिए. आपने कभी ये बियर जो होते हैं, बियर में जब आप जो बार्ली जो होते हैं, बार्ली को अगर हम लोग फर्मेंटेशन करेंगे तो उसमें कैसा खुशबू आते हैं, आप लोगों ने कभी सूंघा है? Did you ever smelled that fermented barley? कविता, No, sir. अरित, हर्ष, कभी नहीं सूंघा आप लोगों ने? मैं बोलता हूं आप लोगों ने No, सूंघा sir. है. Yes, you people have smelled those. आप लोगों ने सूंघा है, डेफिनेटली सूंघा है. बोलो कैसे? आप लोगों ने कभी मुर्गी के हैचरी की तरफ से पास हुआ? कभी मुर्गी के हैचरी गया? गाइस, सर हैचरी मतलब केज? हाँ, मतलब मुर्गी जहां पे पलते हैं. अच्छा, हाँ हाँ.
उसके Okay. उसके अगल बगल से कभी पास किया? Yes, sir. Yes, sir. No. एग्जैक्टली अगर नहीं है तो जाओ आज घूम के आओ, किसी मुर्गी जहाँ पे वो लोग मुर्गी पालते हैं उसके उसके अगल बगल से घूम के आओ। याद रखो आपको आपके नाक में रुमाल देना पड़ेगा आपको। क्यों क्यों नाक में रुमाल देना पड़ेगा? क्योंकि मुर्गी को हम लोग ये फर्मेंटेशन होने के बाद जो ग्रेन्स का पड़े रहते हैं वो चीज खिलाते हैं। बार्ली जो फर्मेंटेशन हो जाते हैं बियर बनाने के लिए, उसके बाद उस जो पड़े रहते हैं बार्ली का टुकड़ा वो हम लोग मुर्गी को खिलाते हैं। और मुर्गी के जो मुर्गी वाला जो फार्म है उसके अगल बगल में जो बदबू छोड़ता है वो इसी फर्मेंटेटेड ग्रेन्स का ही बदबू है, वही चीज मुर्गी को खिलाया जाता है। आप समझे? ये बार्ली को अगर हम लोग फर्मेंटेट करेंगे तो कैसा सुंदर खुशबू निकलेगा। तुम्हारे देश में और हमारे देश में ऐसा कौन सा चीज है जिससे उस एरोमा को आप मात दे सकते हो? है कुछ ऐसा? नहीं है। आप ऑरेंज फ्लेवर दोगे तो नहीं चलेगा। सौरभ माइक बंद कर, सौरभ माइक बंद कर। ओके नाउ उतना सुंदर खुशबू और उतना भयंकर खुशबू को अगर आप कौन से एरोमेटिक हर्ब से उसको मात दीजिएगा, ऐसा कुछ इंडिया में तो है नहीं। आप ऑरेंज फ्लेवर दीजिएगा तो वो खुशबू जाएगा, मतलब वो बदबू जाएगा नहीं। आप रोज फ्लेवर दीजिएगा जाएगा नहीं। मैंगो फ्लेवर, लीची फ्लेवर, रोजबेरी फ्लेवर, कुछ भी दो वो फ्लेवर नहीं जाने वाले। तो याद रखो उस फ्लेवर को अगर बियर में रहेगा तुम पी पाओगे तो बियर। क्या हर्ष भाई? हर्ष Yes, sir. एग्जैक्ट नहीं सर, नहीं पी पाऊंगा। नहीं पाओगे ना, क्योंकि मुर्गी के हैचरी के बगल में जब जाते हो तो जैसा खुशबू मारता है बियर में, अगर वैसा खुशबू होएगा तब तो हो गया बियर पीना। तो इसलिए Yes, उस sir. खुशबू को मात देने के लिए हमें ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा तो उस खुशबू को मात दे सकते हैं। ऐसा कौन सा चीज है? रोज फ्लेवर तो उसको मात दे नहीं सकता, ऑरेंज फ्लेवर तो उसको मात दे नहीं सकता, है ना? या तो आप नटमेग का फ्लेवर यूज करो, या तो तुम जायफल जवित्री का यूज करो, उससे तो नहीं होने वाला, है ना? तो वो कैसा हो जाएगा बोलो तो? इट्स लाइक पायस। पायस नहीं होते हमारे घर में और तुम्हारे घर में जो नहीं होते ना पायसम, खीर जो बनते हैं, उस खीर में अगर आप गरम मसाला डाल दो तो जैसा हो जाएगा वैसे ही होते हैं ये। खीर में अगर आप गरम मसाला डाल दो तो जैसा बनेगा ये भी वैसा ही बनेगा। इसलिए ही हम लोग को हॉप देना पड़ता है। हॉप से क्या होते हैं? वो जो गंदा फ्लेवर, ये जो हॉप होता है, ये हॉप हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसलिए ही कि बियर का वो जो गंदा फ्लेवर है वो गंदा फ्लेवर चले जाए। ठीक है, यही है हॉप, इसका फ्लेवर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होते हैं, कुछ और काम भी होते हैं। देखिए हॉप का साइंटिफिक नेम क्या है देख लीजिए। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हॉप। दिस इज द साइंटिफिक नेम of hop. It is called Humulus lupulus. What is the scientific name of hop? Who can tell me? Students, who can tell me what is the scientific name of hop? Who can tell me? Humulus lupulus. 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 Lupulus or lupulus, Yes, sir. whatsoever. ठीक है, Humulus lupulus. Okay, shut up. Let's find out. This is very interesting thing, you know. Now this is the all things of hop. Now what is the use of hop? देखिए, following are here we have given. Following are the use of hop. क्या क्या चीज करते हैं हॉप बियर में? एक्चुअली करते क्या है देखिए। फर्स्ट ये करते हैं, देखिए यहाँ पे भी हम लोग हॉप का तस्वीर दिया है आपको। फ्लेवर करते हैं बियर को। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव्स देते हैं। हॉप का खुशबू इतना भयंकर है जो बियर में रहने वाले बैक्टीरिया भी उसको ले नहीं सकते, मर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कल से आप लोग कोरोना वायरस मारने के लिए हॉप चबाना शुरू कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस हॉप से नहीं मरते, लेकिन बियर के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं जो बियर को खराब कर सकते हैं वो ये हॉप के फ्लेवर से मर सकते हैं। नेक्स्ट एंटीसेप्टिक। हॉप इज एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, और एरोमा बनाने के लिए, और इससे क्लैरिफाइंग एजेंट एज वेल। क्लैरिफाइंग एजेंट मतलब बियर को वो पतला रखते हैं। बियर के अंदर का जो क्लाउडी भाब वो
नष्ट कर देते हैं। क्लाउडी मतलब क्या होते हैं, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लाउडी लिक्विड किसको बोलते हैं। ये वर्ड बार बार हम लोग क्लाउडी क्लाउडी इस्तेमाल कर रहे हैं। यू पीपल ऑल्सो शुड नो व्हाट इज अ क्लाउडी लिक्विड। देखो क्लाउडी ये होता है क्लाउडी लिक्विड। क्लाउडी मतलब ये देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्लाउजी। ये है क्लियर, ये है क्लाउडी। क्लियर, ये है क्लाउडी। समझ में आया क्लाउडी क्या होते हैं? ऐसे पानी, पानी इज ए क्लियर लिक्विड। ये देखो क्लाउडी, ठीक है, तैरने वाला सामान। बियर जब बनते हैं, बियर ऐसे ही बनते हैं, लेकिन बियर जब बनते हैं, बियर ऐसे ही बनते हैं। बियर जब बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं। समझ में आया? बियर जब बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं। यही है क्लाउडी लिक्विड। ठीक है, अभी समझ में आया? इज इट ओके? क्या होता है, बियर, ये जो हुमुलुस डुपुलुस जो है या तो हॉप जो है, वो क्या करते हैं, बियर का जो क्लाउडी भाब है उसको निकाल देते हैं। चलो, सम ब्रांड नेम होता है बाजार में, बहुत सारे मिलते हैं। ये हॉप, ब्रीविंग गोल्ड, नॉर्दर्न ब्रूज, फिगल्स, दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉप्स। दिस ऑल आर द ब्रांड नेम। मतलब बाजार में जैसे चाय मिलते हैं कंपनी का प्रोडक्ट, वैसे ही ये सब कंपनी का प्रोडक्ट में भी हॉप मिलते हैं। जो सब कंपनी बियर बनाते हैं, जो सब कंपनी बियर बनाते हैं, कल कोई बोलेगा वेस्ट बंगाल में बियर बनाने का फैक्ट्री कहाँ पे है? कोई बोलेगा मुझे? किसी को पता है? वेस्ट बंगाल में एक कंपनी जहां पे बियर बनते हैं, कोई बोलेगा? किसी को पता है? Anybody? Do anybody know where in West Bengal the beer is produced? If you go anytime to Kalyani, you heard of Kalyani? Heard of Kalyani? Anybody? Yes, sir. If you go to Kalyani, Yes, sir. just close to the railway station, you will get a factory, which is the Kingfisher's factory, which was previously, it was Kalyani Black Label. There was a company called Kalyani Black Label. Now this company has been taken over by United Breweries or the Vijay Mallya Group. It's like the Kingfisher company has taken over. Okay. So it is the beer making factory of Kingfisher, which is there in Kalyani. Okay. And beer gets produced there. Okay. Sir? Yes. Can I ask you a question, sir? Yes, sure, beta. Please. Sir, from where the fizziness in the beer comes from? That fizziness, sir. Fantastic question. Let's come here. Let's understand. I do not know whether the things is going to come or not. Oh, that picture I have lost now. Okay. Did you remember that after, in the time of doing fermentation, we were producing carbon dioxide as well? Yes, sir. The carbon dioxide is what? That makes fizziness. Yes, sir. That makes the fizziness. I mean, it's the starting of understanding the fizzy liquid from beer. Now, after beer, we will be reading champagne. We will be reading different other drinks as well, like pastries, cuvées, and all those things we will be reading. These all are the fizzy drinks. And whenever we people are preparing a fizzy drink, these fizz are all of carbon dioxide. All the fizzes are of carbon dioxide. Is it clear now? This all are Yes, the sir. carbon dioxide. Okay. So this part is clear. Next, come with yeast. Now let's stop that. First of that, you people should know how does the yeast looks like and what is the yeast. आप लोगों ने ईस्ट का भी देखा, ईस्ट तो देखा होगा, सुजय सर वो प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करते हैं, देखा है आप लोगों ने ईस्ट का भी? स्टूडेंट्स जो लोग प्रैक्टिकल किए होंगे सर का, वो जरूर देखे होंगे। देखिए ये है बियर में इस्तेमाल होने वाले ईस्ट, कैसे देखने में होते हैं, देख लीजिए। ये है बियर में इस्तेमाल होने वाले ईस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। और जो बेकरी में केक और पेस्ट्री और ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बेकर्स ईस्ट।
Yeast is two types, guys. Yeast is of two types. Yeast is of two types. Yeast yeast is of two types. What are those? First one is first one is yeast. Another one is baker's yeast. One is brewer yeast, one is baker's yeast. One is brewer's yeast. This is brewer's yeast. This is brewer's yeast. Another one is baker's yeast. ये क्या होता है baker's yeast? देख लीजिए. Two types. One is brewer's yeast and one is baker's yeast. Brewer's yeast से क्या बनते हैं? Brewer's yeast से बनते हैं बियर, और बियर भी हो सकता है, और भी बहुत सारे फर्मेंटेशन हो सकते हैं. और बेकर्स इससे क्या बनते हैं? ब्रेड. समझ में आया क्या बोला मैंने? इससे क्या बनते हैं? ब्रेड. समझ में आया अभी स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Is it clear now? Okay, one announcement I have to do for you people. There is, you got an webinar to join after completion of this class from 12 o'clock. I hope you people know that, right? Yes, sir. Everybody definitely knows Yes, that you sir. got a webinar to join from 12 o'clock. And in your group also, ma'am and Saurabh sir as well has sent a document at which some information they have asked for. Individual student had to fill that document and send us. वो आरती मैडम आपके ग्रुप पे थोड़ा सा वो सेंड कर दिया है, और उसके साथ वो सौरभ सर भी सेंड कर दिया है. तो आप लोग वो चीज को, वो जो फॉर्मेट है उसको निकाल लीजिए, उसको एकदम वो वर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है, उसको फटाक से फिलअप करिएगा, करके आप उसको सेंड करिएगा हमें. ठीक है, हम लोग उसको कॉलेज में भेज देंगे. समझ में आया सबको? गाइस, इट इज क्लियर? Yes, sir. Hello. Okay. Now let's understand the yeast. Now see, yeast. What is yeast? Yeast is a microorganism cause the fermentation, only seen when meshed together. Discovered by Anton van Leeuwenhoek something in 1685, and in 1856 Louis Pasteur explains the function of yeast in detail. See, लुई पास्टूर का नाम तो हम लोग ने बहुत सुना है. लुई पास्टूर, ठीक है, they has invented this, they have discovered this yeast. Okay, now yeast is what? Yeast is a microorganism cause fermentation. Yeast is a microorganism cause the fermentation. See, basically two types of yeast which we people have talked about. One is brewer's yeast, another one is baker's yeast. One is brewer's yeast, another one is baker's yeast. Brewer yeast we use for making beer, and baker's yeast is used for making breads. Now, basically
this baker's yeast, which we generally use for making beer, I am taking this out. I am taking this out. This baker's yeast I am taking out. No need of. But only we are remaining with beaver's yeast. This beaver's yeast, just give me a moment. As we are talking about this beaver's yeast, only we are talking about beaver's yeast. Now this beaver's yeast again have two types. What are those? See, beaver's yeast again have two types, as it has been discussed here as well. What are those? First one is top fermented beer. Sorry, one is Saccharomyces cerevisiae. Okay, one is Saccharomyces cerevisiae. Okay, I am making it bigger. That will make you understand. Saccharomyces cerevisiae, and another one is Saccharomyces calvargensis. Saccharomyces calvargensis. This is Saccharomyces calvargensis. Now, what is this Saccharomyces calvargensis? We should understand. Okay, these two types of yeast are generally the brewer's yeast. मतलब जिस ईस्ट से हम लोग बियर बना रहे हैं उसको दो तरीका से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक Saccharomyces cerevisiae और Saccharomyces calvargensis. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए एक तरह का बियर हो, एक तरह का ईस्ट होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं किसमें, जो इस्तेमाल होते हैं टॉप फर्मेंटिंग बियर. बियर जब बनते हैं, बियर बनाने के लिए जो फर्मेंटेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये फर्मेंटेशन दो तरह से होते हैं. एक होते हैं टॉप फर्मेंटेशन, एक होते हैं बॉटम फर्मेंटेशन. बाद में बात करते हैं, पहले आप देखते हैं कौन सा ईस्ट कौन सा काम करते हैं. यहाँ पे आइए, टॉप फर्मेंटेशन. टॉप फर्मेंटेशन कौन करते हैं? Saccharomyces cerevisiae. क्या होते हैं टॉप फर्मेंटेशन? देख लीजिए, देख लीजिए, ये होते हैं आपके टॉप फर्मेंटेशन, ये होते हैं आपके टॉप फर्मेंटेशन. इज इट क्लियर गाइज? समझ में आ रहा है आपको? Yes. समझ में आ रहा है आपको? ओके, बढ़िया. देख लीजिए, ये होते हैं आपका टॉप फर्मेंटेशन और ये होता है आपका बॉटम फर्मेंटेशन. टॉप फर्मेंटेशन पे क्या हो रहा है देख लीजिए, ईस्ट ऊपर में है, नीचे वाले हिस्सा गर्म है. इससे क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन शुरू हो रहा है ऊपर में, फर्मेंटेशन शुरू हो रहा है ऊपर में, फर्मेंटेशन पहले शुरू हो रहा है ऊपर में और उसके बाद धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं. और एक होते हैं कोल्ड फर्मेंट, और होता है बॉटम फर्मेंटेशन, जिसमें हम लोग ईस्ट को देंगे. क्या होते बेसिकली क्या होते हैं, ईस्ट दो तरह का होते हैं, एक Saccharomyces cerevisiae और एक Saccharomyces calvargensis. अब Saccharomyces cerevisiae में क्या होते हैं, Saccharomyces cerevisiae जो होते हैं ये एक तरह का ईस्ट होते हैं जो टॉप फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होते हैं. मतलब क्या होते हैं, ये पानी में अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये ऊपर में तैरने लगेगा, वो फ्लोट करेगा. फ्लोट करेगा तो क्या होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा को पहले फर्मेंटेट करेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे आएगा. और एक होता है Saccharomyces calvargensis, ये होते हैं बॉटम फर्मेंटेशन. देख लीजिए, ये होता है बॉटम फर्मेंटेशन. इसमें क्या होते हैं, ईस्ट को आप जब जैसे भी पानी में दोगे वो पानी में डूब जाएगा नीचे, और नीचे काम शुरू करेगा पहले और धीरे धीरे वो ऊपर में उठेगा. ठीक है, इससे क्या होते हैं, बियर का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं, बियर का टेस्ट चेंज होते हैं, बियर का कलर चेंज होते हैं, हर एक बियर का हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें चेंज हो जाते हैं. कभी कभी बियर का कंसिस्टेंसी भी उससे चेंज होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ ब्रूअर्स ईस्ट which you generally use. One is top fermented yeast, which is Saccharomyces cerevisiae, and one is bottom fermented yeast. What is that? Is Saccharomyces calvargensis. There is some more type of yeast is as well given. Okay, so this is two types of yeast we have talked about. See, Saccharomyces cerevisiae, the top fermented yeast. This top fermented beer जो होते हैं, beer भी बहुत तरह का होते हैं. एक होता है lager beers, एक होता है ale beers. बेसिकली ये Saccharomyces
सेरेबिसिस से हम लोग कौन सा बियर बनाते हैं? हम लोग एल बियर बनाते हैं। और देखिए एल ईस्ट हैंग्स आउट अप हियर, इट इज शोइंग यू द एल बियर्स का जो ईस्ट है, एल बियर का जो ईस्ट है वो यहाँ पे हैंग अप कर रहे हैं। और ये वाला जिस तरह की ये लेगर बियर का ईस्ट है। अब लोगों को ये एल लेगर अभी समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग टाइप्स ऑफ बियर अभी तक पढ़े नहीं। पूरा चीज को हम लोग पढ़ लेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। देख लीजिए ये एल बियर है, टॉप फर्मेंटेड सैकरोमाइसिन सेरेबिसिस से इस्तेमाल होते हैं, और लेगर बियर जो बॉटम फर्मेंटेड बियर से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, समझ में आया। अभी आगे चलते हैं। देखिए टॉप फर्मेंटेड ईस्ट वर्क इन 15 to 19 degrees Celsius and settles at the top of the oat. Oat means that mixture of barley and water, that is called oat, जिसको हम लोग fermentation करवाएंगे। And Saccharomyces carbargensis is a bottom fermented and settles at the bottom and 2 to 6 centigrade. Hence this beer takes 7 to 8. Okay, now next we will talk about one more element, that is called water. समझ में आया students? We will talk about, just give me 2 minutes guys, just 1 minute, just wait a minute. I got a call here, just give me a moment. I got a call here, please just give it, a very urgent call, just a minute. Okay students, sorry for the interruption as because the call came. Okay, next is water. Now the people those who of you have consumed beer, shall I ask you a question? As like Harsh, are you there? Yes, sir. Yes, I am here. Or anybody else have consumed beer? Why the people gone? Lots of people have joined, only 7 people are still remains. 2 people have already gone. Okay. Rima Mondal, where is Rima Mondal? Rima Mondal left. Will not get the attendance. Okay. Now, Shushmita Bala, Kavita Sahani, Shibam Upadhyay, whosoever. Okay. Harsh, can you tell me one thing? When you were drinking the beer, for which things quantity was most higher inside the beer? Harsh? Yes, sir. Which things quantity was most higher? Now let's consider this picture. See, whatever it is, what could be inside the beer, the majority of the amount in the beer is nothing but the water, isn't it? Tell me. Yes, sir. If I draw a picture on the materials which is there in the beer, then do you know what will come? Just give me a moment. If I divide, let's make a glass on which the beer is there. Okay. Now let's see. It's a glass. Sorry. And we have that much of beer. Let's think of this much of beer we people have. Okay. Now
let's think of, we have this amount of, not sorry, we have this amount of beer in it. Okay, now in this beer, the majority of the part is what? Majority of the part is water, nothing else than that. Majority of the part is nothing but the water. Majority of the part is nothing but the water, isn't it? आप जब बियर पीते हो, आप तब जरूर देखे होंगे कि एटलीस्ट बियर में 90% तो क्या होते हैं, 90% आपके होते हैं वाटर, बाकी शायद 90 क्यों, ऑलमोस्ट 98% तो उसमें होते हैं वाटर, बाकी क्या होते हैं, बाकी हो सकता है मिनरल हो, थोड़ा सा फैटी एसिड हो, ये सब चीज होते हैं उसमें। तो अगर वैसा है तो डेफिनेटली वाटर के टेस्ट के ऊपर बियर का टेस्ट निर्भर करेगा, isn't it? Tell me, students, are you there? Can you respond? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो क्या कि अगर आपके बियर में 99% पानी ही है, तो पानी का टेस्ट कैसा है उसके ऊपर बियर का टेस्ट तो निर्भर करेगा, ऑब्वियसली करेगा, Obviously, sir. ऑब्वियसली करेगा। तो पानी को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। याद रखिए, बियर में जो पानी हम लोग यूज करते हैं वो ऑब्वियसली हैज टू बी अ मिनरल वाटर। हम लोग मिनरल वाटर के बारे में पढ़े हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप देखिएगा मिनरल वाटर और बिस्लरी वाटर में डिफरेंस क्या होते हैं। बिस्लरी वाटर आपको प्यास लगा, आप एक बोतल पूरा बिस्लरी वाटर पी गए, पर देन ऑल्सो आपका प्यास ना बुझा, लेकिन आप घर में आपके घर का जो पानी है वो एक ग्लास पानी आप थोड़ा पी लिए तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा प्यास भर गया, ऑलमोस्ट प्यास बुझ गया। क्यों? क्योंकि वो बिस्लरी वाला पानी में उसमें नेचुरल मिनरल तो होते नहीं, इसलिए जिस पानी में जितने ज्यादा मिनरल होगा वो पानी अगर आप बियर में इस्तेमाल कर रहे हो तो वो बियर सबसे बेहतरीन टेस्ट का बनेगा। बियर में अगर जितना ज्यादा पानी आप जितना अच्छा पानी आप इस्तेमाल, अच्छा पानी का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको हिमालय वाटर उसमें डालना पड़ेगा, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, और यू हैव टू फाइंड आउट द वाटर फ्रॉम water of EVO or Perrier from somewhere or from Voss. No, I'm not telling about that. अच्छा पानी मतलब जिस पानी में जितने ज्यादा मिनरल होगा, मिनरल का मतलब ये नहीं कि आर्सेनिक होगा, आर्सेनिक भी एक तरह का मिनरल है, लेकिन वो खराब वाला मिनरल है, वो अच्छा नहीं है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोस काइंड ऑफ मिनरल। सी 6 main, what are those? 6 main salts, what are those? As like bicarbonate, sodium, chloride, calcium, magnesium and potassium. This 1 2 3 4 5 6, this 4 element had to be there inside a water. आप देखिएगा कि पानी को आप गर्म करके पीते हो तो वो पानी पीने का अच्छा नहीं लगता। क्यों? इसलिए क्योंकि उस पानी में मिनरल कंटेंट नहीं होते, उस पानी में मिनरल कंटेंट नहीं होते, मिनरल घट जाते हैं, मिनरल नीचे सेडिमेंट की तरह नीचे जम जाते हैं। इसलिए बियर में जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए याद रखिएगा दुनिया में सबसे बेहतरीन बियर मिलते हैं स्कॉटलैंड और जर्मनी में। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बियर बनते हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं, जो झरना का पानी होते हैं, वो लोग का जो झोड़ा हुआ झरना, जो फाउंटेन्स होते हैं, वो पानी वो लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें? बियर में। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आपने कभी आप में से कोई कभी हिली एरिया में घूमने के लिए गया? दार्जिलिंग हो, गैंगटॉक हो, शिलोंग हो, कभी गया आप लोगों ने? कोई गया आप लोगों में से? एनीबॉडी? राहुल कभी घूमने गया बाहर पहाड़ी इलाकों में? नो सर। ओके, सुष्मिता कभी गया दार्जिलिंग, गैंगटॉक? हाँ सर गई। हाँ 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 सर गई थी, गई थी। तो आप देखिएगा कलकत्ता का पानी और दार्जिलिंग का पानी में बहुत डिफरेंस होते हैं। दार्जिलिंग का पानी बहुत मीठा और सुंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग पहाड़ी इलाका है और वहाँ का पानी में मिनरल्स ज्यादा मिला हुआ होता है। इसलिए पानी भी हम लोगों को वैसा इस्तेमाल करना होगा बियर में जो जिसका मिनरल, जिस पानी में मिनरल कंटेंट आपके बहुत ज्यादा हो, उससे क्या होगा? टेस्ट बढ़ेगा। और दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। वाटर कंटेंट 6 मेन सॉल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, chloride, calcium, magnesium and potassium. These 4 elements are very important. High level of
carbonate will produce acid mass, which will reduce the extraction of sugar from the malt. Very important. Now एक चीज हम लोग यहाँ पे बार्ली जब बात कर रहे थे तब हम लोग एक चीज का डिस्कशन नहीं किए, भूल गए। उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। जो वर्ड उस वक्त आया भी नहीं था, हम लोग डिस्कस भी नहीं किए थे। गाइस, बार्ली जो इस्तेमाल होते हैं वो हम लोग माल्टेड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। कैन एनीबडी ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द माल्टेड फॉर्म ऑफ बार्ली? यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है बियर इज प्रोड्यूस फ्रॉम माल्टेड बार्ली। व्हाट इज माल्टेड बार्ली? हु कैन टेल मी? Anybody have any idea what is the malted barley? Beer is produced from malted barley. Everybody will be telling you malted barley. Now, what is malted? Who can tell me what is the meaning of malted? What is the meaning of this? Who can tell me? I'm writing this word. Please follow. I'm writing this word. Please follow. M-A-L-T, malt. Now, what is the meaning of malt? What is the meaning of malt? Who can tell me? It's a grain, sir. No. 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 What is the meaning of malt? कौन बोलेगा मुझे? माल्ट का मतलब क्या होता है? हम लोग बियर बनाने के टाइम माल्टेड बार्ली इस्तेमाल करते हैं, बात तो सही है, लेकिन माल्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड माल्ट? माल्ट क्या है? बार्ली तो हम लोग इस्तेमाल कर लिए, बार्ली में ज्यादा ग्रेन है, ज्यादा शुगर है, उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बोल रहे हो कि माल्ट भी करना है। कैसे माल्ट करना है? क्या माल्ट का मतलब क्या है? बढ़िया, देखिए बेटा, माल्ट का मतलब ये होते हैं, ये जो होते हैं ना, एक ग्रेन हम आपको दिखाए थे, याद है? थोड़ी देर पहले तस्वीर से दिखाए थे हम आपको, दोबारा हम दिखा रहे हैं आपको उस चीज को। समझिए, ये माल्ट वर्ड का मतलब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माल्ट वर्ड का मतलब जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी अर्जेंट। देखिए, हम लोग थोड़ा इसको वाइप करेंगे। तो क्या हो गया? एक मिनट का नहीं, just hold on a minute. Just a minute. Just keep your minute. Okay, as I was making you understand. So, if this is our grain, what was the meaning of malt? तो समझ लीजिए, ये काम पे आएगा बहुत, ये बहुत काम पे आएगा, लिख लीजिए। क्या देखे हम लोगों ने? 4 चीज हम लोगों ने देखा यहाँ पे, 4 चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखा। एक ग्रेन के अंदर क्या क्या चीज होते हैं तो हम लोगों ने देखा ऑलरेडी। क्या क्या होते हैं? एक मिनट गाइस, सोमेन স্যার, আমি 2 মিনিট পরে ফোন করি, ক্লাসের মধ্যে আছি। আমি ক্লাসে আছি, তো 2 মিনিট পরে ফোন করি, আমি ক্লাসে আছি। ওকে ওকে, আমি 2 মিনিট পরে ফোন করছি। ওকে ওকে ওকে। Okay, now see, as we have made it, so if we take this as a grain, this is, we have told you what?
protein. Guys, we are understanding the meaning. Arey yaar, what the thing is happening, you know? What is this thing is happening? Now this portion is protein. Okay. Now this one is carbohydrate. Carbohydrate. Now this one was mineral. What this one is? Just a minute. Okay, this all are now. What is it happening? Guys, just give me a moment. You know? I cannot draw this anymore. Okay, this portion is of mineral, as we have drawn previously. This one is fiber. What is the meaning of, guys, are you there too? Students, are you there? Yes, sir. Okay, now understand what is the meaning of malting. What is the meaning of malting? So this portion is all of the carbohydrate. This portion and this portion is the mineral. So what we are doing, what is the meaning of malting? Malting मतलब आप क्या होते हैं, जो ग्रेन होते हैं उसको थोड़ा सा पानी में आप भिगो के रखोगे तो क्या होते हैं, उसमें जर्मिनेट होते हैं. जर्मिनेशन मतलब क्या होते हैं? जर्मिनेशन मतलब अंकुरोद्गम होना. अंकुरोद्गम होते हैं, आप देखे हैं आपके घर में जो छोला होते हैं, छोला को आप पानी में रख दोगे तो क्या होगा, वो अंकुरोद्गम होगा, है ना? आपने देखा है वो होते हैं, देखे हैं आप लोगों ने जर्मिनेशन, देखे हैं आप लोगों ने कभी? छोला को अगर आप पानी में रखोगे, एक दो दिन रख दोगे तो क्या होगा, उसमें से अंकुर निकलते हैं. तो जब अंकुर निकलते हैं तो क्या होता है, as like that grain is also the tree is also producing its baby, मतलब उसका जो बच्चा है वो आ रहा है. तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, देखिए उस पेड़ को जो अंकुर आ रहे हैं, उस अंकुर को खाने के लिए प्रकृति का ऐसा ही सिस्टम है कि दिस पर्टिकुलर ग्रेन विल चेंज एवरीथिंग. सब कुछ घटा देगा. वो सब कुछ घटा के क्या करेगा, ये सभी चीज को वो कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित कर देगा. ये सभी चीज को कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित कर देगा. और ये जो आपके फाइबर, प्रोटीन, मिनरल जो भी है, आपके जो फाइबर, प्रोटीन जो भी हैं, वो सभी उस वक्त एकदम पूरा घट जाएगा. और घट जाके क्या होगा, ये सभी इतने कम जगह पे आके रुक जाएगा. ये सभी इतने कम जगह पे आके रुक जाएगा. हो सकता है इतना सारा प्रोटीन हो गया, इतना सा फाइबर हो गया. हो सकता है कि आपका ये फाइबर हो सकता है कि आपका जो फाइबर आपने इस्तेमाल किया होगा वो यहाँ पे आके रुक गया. फाइबर हो सकता है जितना भी मिनरल्स था वो आके यहाँ पे रुक गया. इतना सारा हो सकता है. ये सभी चीज इतना हो गया. ये प्रोटीन हुआ, ये फाइबर हुआ, ये प्रोटीन हुआ, ये मिनरल. बाकी जितना भी हिस्सा है
बाकी जितना भी हिस्सा है वो पूरा क्या हो गया, वो पूरा आपका क्या बन गया, वो कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब ये मल्टिंग टाइम इसको ही बोलते हैं, इसको ही मल्ट बोलते हैं। क्या होते हैं उससे, ये मल्टिंग टाइम में जब जब भी पेड़ का जब भी अंकुरोद्गम होते हैं तो उस अंकुर का उसमें अंदर जितना भी सामान है वो सब कट जाते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाते हैं। अब समझ में आया व्हाट इज कॉल्ड मल्ट? गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड मल्ट नाउ? Guys, did you understand what is called mulch now? Guys, Yes, did you sir. understand? Now, Yes, this sir. thing, exactly. Now, this thing is called malt. Why it is called malt? अरे यार, this is called malt. Now, this portion, this material is called, this total material is called malt. ये पूरा हिस्सा जो है आपका, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे हम लोग माल्ट बोल रहे हैं। ये पूरा माल्ट हो रहा है। समझ में आया माल्ट क्या होता है? माल्ट मतलब आफ्टर जर्मिनेशन, एनी ग्रेन आफ्टर जर्मिनेशन व्हिच वी आर गेटिंग, दैट इज कॉल्ड माल्ट। समझ में आया? नाउ वी वर रीडिंग अबाउट दिस वाटर। वाटर भी सब समझ में आया था कि वाटर में जितना मिनरल कंटेंट होगा उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट इज शुगर। शुगर क्यों? याद रखिए, शुगर भी हम लोगों को देना पड़ता है कि इससे क्या होता बियर का जो बिटरनेस है वो थोड़ा सा घट जाता है। और साथ में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा कैरोमेल फॉर्म होते हैं। कैरोमेल मतलब बियर में आप देखिएगा थोड़ा सा ब्राउन कलर आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग क्या करते हैं, ओक बैरल में, ओक एक ट्री होते हैं, उस ओक बैरल में हम लोग उसको रखते हैं बहुत दिन के लिए। उससे क्या होता है, ओक बैरल से वो येलो कलर लेते हैं। ठीक है। और एक होते हैं सेकेंडरी फर्मेंटेशन भी हम लोग करना पड़ता है। उससे क्या होता है, बियर में जो आप लोग कुछ देर पहले बोल रहे थे ना कि बियर में क्या होता है, उसको बियर में हम लोग स्पीच मिलते हैं, हम लोग को तो बबल्स मिलते हैं। वो हम लोग पाते हैं कैसे कि शुगर ऐड करोगे तो फर्मेंटेशन होगा, तभी जाके हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है गाइस, टिल दिस आई एम गोइंग फॉर ए रिकैप ऑफ होल थिंग्स। जस्ट गो फॉर ए रिकैप। बियर आप लोग देख लीजिए पूरा चीज को। बियर किसी हम लोग कल ही पढ़ लिए थे। इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लोग शुरुआत किए बार्ली। गाइस, आर यू देयर? यू आर लिसनिंग तो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिसन केयरफुली। नाउ बार्ली के बारे में हम लोग पढ़े। मल्टेड बार्ली किसको बोलते हैं, जर्मिनेशन किसको बोलते हैं, ग्रेन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम लोग बार्ली को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सभी चीज हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े हैं हॉप के बारे में। क्या होते हैं ये हॉप, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कहां से मिलते हैं, क्या क्या चीज वो बियर में करते हैं, हम लोग वी हैव read that. Different brand names of the hop as well. Now yeast, different types of yeast. Which yeast does what kind of work? Who invented yeast? What is yeast? What is fermentation? This fermentation also we people have read already. What is the exact requirement of fermentation in the beer? We have read about. As well, we have talked about different types of yeast, top fermented yeast, bottom fermented yeast. This all thing we have read about. Okay. Now, what is L kind of beer, what is Lager kind of beer, also we have understood. Next, what is Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces convergensis, we have understood. Now water. Water is again a very important part we have understood, because majority of the amount of the beer is what? It is water. So we have to understand about the water, and there is couple of materials are there inside the water which had to be there to make the water more tasty. If the water is good in taste, the taste of the beer will be good. If the taste of the water is not good, the beer will not be good. Next is what? Sugar. Sugar also what? It speeds up the fermentation, reduce the bitterness, increase the caramel portion, and it gives the carbon dioxide inside the beer. It gives the
carbon dioxide inside the beer. So till now we people have read this. Did anybody have any questions in that? Students, do anybody have any questions in that? No, sir. जितना तक मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. बहुत अच्छा. This note only I will be sharing with you today. Okay, and remember, after completion of the beer and coffee are also completed. This also completed. I will make question paper and I will send. You have to give me the examination. So please read. और आपके CA मार्क्स जितना भी आपको जमा करना होगा, जितना भी एग्जामिनेशन मैं लूंगा, वो सभी एग्जामिनेशन को मैं एवरेज करूंगा, उसके बाद भेजूंगा. मतलब एक एग्जामिनेशन पे अगर आपका नंबर घट जाएगा तो याद रखिए आपका एवरेज भी घट जाएगा. तो आप प्लीज पढ़िए, ना पढ़ने से लेकिन आपका एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम होगा. याद रखिए नेक्स्ट वीक या तो मंडे या तो ट्यूसडे आपका दोबारा एग्जामिनेशन होगा. या तो मंडे या तो ट्यूसडे दोबारा आपका एग्जामिनेशन होगा. और उसमें क्वेश्चन ऐसा ही मैं दूंगा. याद रखिए मैं क्वेश्चन उसमें ऐसा ही दूंगा कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ. आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बेटा. मैं बोल रहा हूँ पिछले बार जैसे एग्जामिनेशन हुआ था, पीपल बिकम कंफ्यूज्ड. द सेम थिंग, आपको अगर अच्छे से आप नहीं पढ़ोगे, क्लियर नहीं करोगे, चाहे जितना चाहे इंटरनेट ढूंढो, आंसर नहीं मिलने वाला. आपको पढ़ना होगा. यू हैव टू रीड. I will make question in that manner. So please read. Okay. Any questions? Any more students? Or one more request, after completion of this class, from 12 o'clock, your webinar is starting. It is mandatory for every student to join in the webinar. Everybody have to join in the webinar. Okay? So one more thing, was the class was interesting today? Yes, sir. Yes, sir. Was. Yes, sir. आवाज नहीं आया मेरे कान में. Yes, कान में sir. Yes, sir. सच बोल रहा है ना? You guys are telling me truth तो. सच तो बोल रहे हो आप लोग. Yes, sir. Yes, sir. सच बोलो. अगर क्लास अच्छा नहीं भी लगे तो मुंह पे बोलो सर क्लास अच्छा नहीं लगा. अगर अच्छा लगे तो बोलो कि सर हाँ क्लास अच्छा लगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप लोग जानते हो मैं ये पसंद करता हूँ कि आप सच बोलो.